تو دو تین بندے آئے، انہوں نے بولا کہ ہم نے بھی ساتھ جانا ہے لاہور۔ اتنے میں انہوں نے گن شن وغیرہ نکالے، وہ بیگ اٹھا لیے جس میں پیسے تھے۔ وہ گاڑی لینے کی بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اس لیے ڈر رہے تھے کہ پکڑے جائیں گے۔ کتنا کیش تھا؟ تقریباً 50 لاکھ روپے۔ رانا سرور صاحب کا فکر ہو جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنا حق مل جائے گا۔ تیرے یہ بھی دن رات ساتھ محنت کر کے ہم اس کا بہت مشکور ہے، پورے پنجاب پولیس کا۔ ایک عورت اور تین لڑکے آتے ہیں، ان سے رابری کر کے 50 لاکھ روپے چھین کے چل جاتے ہیں، جس سے یہ رابطے میں تھے، جو ان کو بلا رہی تھی کہ آ جائیں ڈالا ریوو ڈالا آپ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ دو ابھی پکڑنے باقی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ جلد گرفتار کریں گے، اور باقی ماندہ جو لوگوں کی ریکوریز ہیں وہ ان سے برآمدگی کی جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان عامر بشیر۔ ناظرین، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اس کے خاتمے کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر یہ بات زد عام ہے کہ کرائم کے خاتمے کے لیے سی سی ڈی اور آپریشن جو جوان ہیں پنجاب پولیس کے، وہ بڑے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ فیروز والا کا تھانہ ہے، یہاں پر ایک رابری ہوتی ہے 50 لاکھ روپے کی، گن پوائنٹ کے اوپر کے پی کے سے آئے ہوئے ایک جوان کے ساتھ رابری ہوتی ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس تھانے کے اندر، اور تقریباً 22 دن کے بعد اس کی ساری ریکوری، ملزمان کو پورا جو 4 رکنی ایک گینگ تھا جس کی سرگنا ایک خاتون بتائی جا رہی ہے، اس سمیت اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان سے ریکوری کر لی جاتی ہے۔ ریکوری بھی اس وقت موجود ہے، ملزمان کی انٹیروگیشن چل رہی ہے، اور کچھ کو یہاں سے جوڈیشل کر دیا ہوا ہے۔ اس وقت جو مدعی تھا اس مقدمے کا وہ میرے ساتھ موجود ہے، جو کے پی کے سے آیا ہوا ہے اپنی ریکوری کے لیے، اور ساتھ پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ وہ پنجاب پولیس کا وہ جو آفیسر ہے جس نے 22 دن کے اندر وہ ساری رابری جو ٹریس کی ہے، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل خان۔ فیصل خان، کدھر سے؟ پشاور سے۔ پشاور سے، مطلب کے پی کے یہاں پہ خیریت سے آئے ہو؟ ادھر لاہور آئے ہوئے تھے، گاڑی لے رہے تھے، تو راستے میں 3-4 بندے نکل آئے، میرے ساتھ گاڑی میں کیش پڑا ہوا تھا، کتنا کیش تھا؟ تقریباً 50 لاکھ روپے۔ 50 لاکھ روپے؟ جی جی۔ کے پی کے سے آئے ہو لاہور، فیروز والا کی حدود میں گاڑی خریدنے، اتنا کیش لے کے آئے ہو؟ تو بس گاڑی ڈیل ہو گئی تھی؟ ہاں، ڈیل ہو گئی تھی۔ اچھا، ہاں۔ آپ نے کہا، اس نے کیا بولا کہ لاہور میں آ جاؤ، یہاں سے گاڑی لے جاؤ؟ ہاں، یہاں سے گاڑی لے جاؤ۔ کیا کام شام کرتے ہیں؟ یہی گاڑیوں کا کام کرتا۔ گاڑیوں کا کام جی کرتے جی ہیں؟ جی۔ کتنے عرصے سے؟ تقریباً کوئی 5-6 سال ہو گئے۔ اچھا، تو یہاں پہ جب آپ آئے ہیں، آپ کو یہ نہیں لگا یار کیش لے کے جا رہا ہوں، کسی بینک میں رکھ دوں، اتنا ہارڈ کیش کیری کرنا مناسب نہیں ہوگا، یہ ذہن میں نہیں آیا؟ آیا تھا، لیکن گاڑی ساتھ اپنی تھی، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بس یا سی سی ڈی کی وجہ سے آپ نے کہا پنجاب اب کرائم سے پاک ہے، سی سی ڈی تو ظاہری بڑی متحرک ہے؟ بالکل بالکل۔ عادت نہیں ہو سی سکتی۔ سی ڈی، ہاں بالکل بالکل۔ تو جب یہاں پہنچے تو ہوا کیا؟ جب آپ گاڑی پہ جی ٹی روڈ سے آئے، موٹر وے سے آئے، کیسے ہوا؟ جی ٹی روڈ سے ہی آیا میں، تو جب ادھر پہنچ گیا یہ مرید کے سے آگے فیروز والا، میں نے کہا کہ ادھر رکوں، کھانا شانا کھاؤں، تو ادھر جب رک گیا سائڈ پہ، نماز کا بھی ٹائم تھا، تو 2-3 بندے آئے، انہوں نے بولا کہ ہم نے بھی ساتھ جانا ہے لاہور۔ میں نے کہا میں تو لاہور نہیں جا رہا ہوں، تو اتنے میں انہوں نے گن شن وغیرہ نکالے، اس کے پاس گھنے بھی تھے، تو موبائل چھیننے کی کوشش کی اس نے پہلے تو، لیکن موبائل تو میں نے گاڑی میں نیچے گرایا تھا۔ پھر جب انہوں نے گاڑی کے اندر جھانک کے دیکھا تو تلاشی شروع؟ ہاں، تلاشی وغیرہ شروع کر دی، تو انہوں نے وہ کر دیا کہ وہ بیگ اٹھا لیے جس میں پیسے تھے۔ وہ گاڑی لینے کی بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اس لیے ڈر رہے تھے کہ گاڑی میں ٹریکر وغیرہ ہونا، اس وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ ہاں، پکڑے جائیں گے۔ تو پھر جب وہ نکل گئے تو میں نے جب موبائل پہ سرچ کیا ادھر قریب، میں نے کہا تھا نا فیروز والا، جب میں آ گیا تو ایک دبنگ ماشاءاللہ اور نہ ڈر سے جو ہے رانا سرور صاحب، اس کو میں نے سارا قصہ سنایا، اور جب سنایا تو اس نے بولا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنا حق مل جائے گا۔ ہاں، تو تقریباً یہ آج کوئی
25 दिन हो गए हम इसके पीछे फिरते रहे, ये भी दिन रात साथ मेहनत करके। हम उसका बहुत मशहूर है, पूरे पंजाब पुलिस का, स्पेशली राना सरवर साहब का। तो उन्होंने अभी हमें उनको पकड़वाया, जब पकड़वाया तो अभी हमें उन्होंने चेक दे दिए जो 3 महीने में क्लियर हो जाए। अच्छा, चेक दिलवा दिए, मतलब आपकी रिकवरी आपको दिलवा दी। हाँ बिल्कुल। अगर चेक डिसऑनर हो गए तो क्या गारंटी है इसमें? वो राना साहब कह रहा था कि इससे ज्यादा कार्रवाई पर हम आपके लिए करेंगे, और उससे चेक वगैरह उसके नाम के ही दिलवा दी। लोग तो अक्सर कहते हैं दूसरे जिलों में जब अपने इंसाफ के लिए जाएं तो हम रुल जाते हैं। नहीं, आप केपीके से यहाँ पे आए हैं और 20-25 दिन के अंदर आपको 50 लाख रुपए जो कैश आपसे रॉबरी के दौरान छीना गया था वो रिकवर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम मशहूर है राना साहब के, और काफ़ी मशहूर है पंजाब पुलिस की भी। बड़ी बात है नाज़रीन। ये तकरीबन 20 से 25 दिन हुए हैं इन्हें, केपीके से आते हैं, गाड़ी इन्हें पसंद आती है और गाड़ी का सौदा इनके साथ हो जाता है। ये फिरोज वाला की हदूद में यहाँ पे पहुँचते हैं और कुछ ही दूरी के बाद जहाँ पे अपनी मंजिल पे इन्होंने पहुँचना है, और रास्ते में 3 अफराद मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें भी आगे ले जाओ, लेकिन रास्ते में ही इनसे गन पॉइंट के ऊपर रॉबरी हो जाती है। और रॉबरी का जो कैश गया हुआ था वो इन्हें मिल गया है, चेक दे दिए हुए हैं 2 चेक। उसमें कितने माह का टाइम दिया हुआ है या कितने दिन का? ये कैश का चेक है, 1.5 महीने का टाइम है उसमें। 1.5 माह मतलब 3 माह के अंदर आपकी पेमेंट रिकवर हो जाएगी। इंशाल्लाह। और उसकी जो गारंटी है वो SHO फिरोज वाला राणा सरवर ने ली है, ऐसा ही है नाज़रीन। ये बड़ी बात है। वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तो इंसाफ ही नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए कोई पैगाम है आपके पास? नहीं, आजकल तो पंजाब पुलिस माशाल्लाह, स्पेशली CCD जो लॉन्च हुई है, और हमें तो इंसाफ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आगे देखेंगे इंशाल्लाह कि वहाँ जाकर अपने जो आपके भाई हैं, पख्तून हैं, पेशावर में, KPK में, वहाँ पे बताएंगे कि पंजाब में कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पश्तून नहीं, वहाँ पे सब हम एक ही हैं, पाकिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल, और हर एक को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। नाज़रीन, ये KPK से आए हुए हैं, इंसाफ इन्हें मिला है, और जो 50 लाख रुपए की इनके साथ रॉबरी हुई थी वो रॉबरी भी, डाकू भी पकड़ लिए गए हुए हैं, और जो उनसे पैसे इनसे जो लिए गए थे वो चेक्स की सूरत में 2 चेक दिए गए हुए हैं। 3 माह की डेट है, उसके ऊपर 1.5 माह का चेक है। वो इसमें गारंटर जो है वो SHO फिरोज वाला वो खुद है इसके अंदर। SHO ने सारी कार्रवाई कैसे की, मुल्जमान को कैसे ट्रेस किया, कितने दिन लगे इस सारी ट्रेसिंग के अंदर। और अक्सर लोग कहते हैं कि दूसरे जिलों में अपने जिले के अंदर इंसाफ नहीं मिलता और दूसरे सूबे में जाके तो इंसाफ भूल जाएं। इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ था वो आपने जाना है, और SHO फिरोज वाला ने इसको कैसे ट्रीट किया, इस सारे केस को कैसे उनकी जो काविश है वो रंग लाई, और मुल्जमान को कैसे इन्होंने इंसिस्ट किया कि पैसे आपको देने पड़ेंगे। मजीद हम उनसे बात करते हैं। ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, ये एप्रिसिएशन भी है कि एक दूसरे सूबे से आए हुए KPK से रॉबरी होती है और आप उसे कुछ वीक के अंदर मुल्जमान भी ट्रेस कर लेते हैं, उनसे जितनी रिकवरी उन्होंने पेमेंट लूटी थी वो भी वापस कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डेली बेसिस पे करती रहती है। ये शरीफ आदमी है, KPK से आए हैं एक डाला रिवो लेने के लिए। इनको झांसा दिया जाता है 50 लाख इनसे नकद, और बाकी 1 करोड़ का राउंड अबाउट इनसे ये कहते हैं कि ऑनलाइन करवा दीजिएगा। एक औरत और 3 लड़के आते हैं, इनसे रॉबरी करके 50 लाख रुपए छीन के चले जाते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस करके उनको पकड़ के। सर, आप कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी खरीदने के लिए डील होती है 1-1.5 करोड़ रुपए की, कैश ये लेके आते हैं उस गाड़ी की परचेजिंग के लिए, और रास्ते में सारी रॉबरी होती है? जी बिल्कुल, ये ऐसे गार्डन के पास इनके साथ रॉबरी हो जाती है। लाहौर से लड़के 3 उस लेडी के साथ आते हैं, वो रॉबरी करके 50 लाख छीन के फरार हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रेस करके उनकी ID परेड करवाई जाती है, उनसे ये रिकवरी, ये KPK जो के से मेहमान आए हैं पठान, इनके हवाले की जाती है।
पुलिस रोज़मर्रा में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम करती रहती है, रिकवरीज लोगों को लेके देती है, ये कोई नई बात। सर मुझे एक चीज़ बताएं कि जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं, इनके साथ वारदात होती है, जब सारी मालूमात आप इनसे लेते हैं, सबसे पहले जो टारगेट है या क्लू जिसे कह लें, एक आम आदमी को भी यही जाता है कि यार जिन बंदों को पता था कि ये वहाँ से आ रहे हैं इतना कैश लेके, वही इनको ट्रैप कर सकते हैं, क्या ऐसा ही था? जी, जब ये 155 पे कॉल करते हैं, मैं और मेरी टीम मौके पे पहुंचते हैं, इनके पास एक नंबर होता है जिससे ये राब्ते में थे, जो इनको बुला रही थी कि आ जाए डाला, रिवो डाला आपको सेल आउट करते हैं। उस नंबर से ट्रेस आउट किया जाता है लाहौर से। बेसिकली वो कश्मीर की है लेडी, और उसका एक हमराई अभी फरार है अबू बकर, जो मानसेरा से बिलोंग करता है। तो उसकी CDR वगैरह लेके और IT की खिदमत हासिल करके उनको ट्रेस करके ये इनको अंजाम तक पहुंचाया जाता है और रिकवरी मुद्दइयों के हवाले की जा रही है। सर ये कितने रुकनी गैंग बोलेंगे ना, जो लोगों को ट्रैप करते हैं दूर दराज से लोगों को चीज लेने के बहाने, कितने रुकनी गैंग है? और अब तक जो पुलिस ने कितने मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया हुआ है? ये बेसिकली 4 रुकनी गैंग है, जिनमें से 2 जुडिशल हो चुके हैं, 2 अभी पकड़ने बाकी हैं। उनको भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे, और बाकी मानदा जो लोगों की रिकवरीज हैं वो उनसे बरामदगी की जाएगी। सर जिन मुल्जमान को आपने पकड़ा है उनकी वाबस्तगी किस किस जिलों से है वो जरा बताएं। एक कश्मीर के हैं, वो लाहौर रहती है लेडी। दूसरा जो है वो लड़का वकार भट्ट, वो बेसिकली लाहौर से है, ठीक है, और लाहौर ही रहता है। लाहौर से ही इनको ट्रेस आउट किया गया। और बाकी एक लड़का मानसेरा का है, एक और लाहौर का बाकी रहता है। जो मुल्जमान है उनको भी जल्द इंशाल्लाह गिरफ्तार करें। जिनको पकड़ा है क्या वो इस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड में वो पहले से भी मौजूद है उनका? होता यह है कि जब तक बंदा पकड़ा नहीं जाता तो उसका रिकॉर्ड नहीं बनता। बंदा वारदात करता रहता है, उसकी लाक होती है कि वो पकड़ा नहीं जाता। जब पकड़ा जाएगा तो रिकॉर्ड तो तभी बनेगा ना, अरेस्ट होगा, जेल जाएगा। तो इससे पहले अरेस्ट नहीं हुए थे, रिकॉर्ड इसलिए बेसिकली उनका नहीं था। और ID परेड भी इसीलिए करवाई गई है, उनका इंकशाफ था, उनको उनके इंकशाफ पे जेल भेजा गया ID परेड पे। ये खान साहब ने, इन्होंने जो मुद्दई हैं, इन्होंने ID परेड की है, आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। अच्छा सर, क्वेश्चन लास्ट है मेरा आपसे, ये जो 4 रुकनी गैंग है, जो मुल्जमान आपने पकड़ लिए हैं बकौल आपके, आप कह रहे हैं सर उनसे आपने तफ्तीश भी की होगी, कितने अरसे से इन सारे नौसरबाजी के अंदर वो इन्वॉल्व थे? लोगों को ट्रैप करना, उसके बाद उनसे रॉबरी करना, और उसके बाद उनको लूटना। ये तकरीबन 6 माह से इन्वॉल्व है, लेकिन हर बंदा इनके हथे नहीं ना चढ़ता। जो शरीफ आदमी है, जो भोला भाला इंसान है, वो इनके हाथों ट्रैप होता है। तो चंद एक वारदातें और हैं जिनका उन्होंने इंकशाफ किया, इंशाल्लाह उनको भी रिकवरी दी जाएंगी। देखें, जो लूटी हुई रकम है वो खा भी जाए तो अपने असासाजात बेच के दें, जिस शरीफ आदमी के साथ हो गई है। तो वो अभी शुक्र है कि उन्होंने लगाई नहीं थी, तो एज इट इज़ इनकी रकम अल्हम्दुलिल्लाह वापस मिल गई है। कोई भी डाकू किसी भी जगह के ऊपर अगर फिरोज वाला के अंदर रॉबरी करता है, उसके असासाजात सेल होंगे, उसकी रिकवरी जो लूटी हुई रकम है वो उस मदई को वापस की जाएगी। अगर उसके पास वो रॉबरी की हुई रकम मौजूद नहीं है तो ये दूसरे जिले से, दूसरे सूबे से हम कहेंगे, ये आए हुए हमारे पख्तून भाई हैं जो वहां से आए हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि ये गाड़ियों का कारोबार करते हैं, गाड़ी यहाँ पे सस्ते दामों मिल रही थी, अपने इलाके में जाकर उसे सेल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इनके साथ वारदात होती है, जहाँ पे SHO फिरोज वाला ने उसको रिकवर किया है और आज ऑन रिकॉर्ड इस चीज को क्लेम भी किया है। रॉबरी कोई भी होगी, अगर आपके पास नहीं है पैसे, जो चोर है उसके सासाजात सेल होंगे और पैसे जो हैं वो रिकवर किए जाएंगे। और